جو کل PDM کا جلسہ ہوا ہے اور جو اس لحاظ سے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی تھا اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کارکن وہ فتح یاب ہوئے، عوام کامیاب ہو گئی، اور ہم نے جب کہا تھا کہ جلسہ ہو کر رہے گا تو اللہ کی مدد سے وہ جلسہ ہو کر رہا۔ تو اس لحاظ سے پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں نے بھی بڑی قربانی دی، محاذ پر بالکل میدان میں جا کر انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ اس کی پاداش میں وہ گرفتار بھی ہوئے، پولیس گردی کا نشانہ بھی بنے، تشدد بھی ان کے اوپر ہوا، جیل بھی گئے، لیکن اللہ نے بڑی سرخروئی کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ ان کو جیل سے رہائی دی، وہ جلسے میں بھی شریک ہوئے۔ تو اس نسبت سے میں آج یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے جذبات کو اور ان کے احساسات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ PDM کا یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا، اور اب ہماری نظریں انشاءاللہ 13 دسمبر کے لاہور کے جلسے پر ہوں گی۔ اس حوالے سے میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ 8 دسمبر کو اسلام آباد میں PDM کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں PDM میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے، اور آئندہ کی حکمت عملی وہ پھر PDM کے سربراہی اجلاس ہی میں طے ہوگی۔ کوئی لانگ مارچ کا بھی ارادہ ہے اس کے بعد جلسوں کے بعد؟ سر تو میں نے عرض کر دیا کہ PDM کے اجلاس میں آئندہ کا جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ اسی میں انشاءاللہ طے کیا جائے گا، اور لانگ مارچ چونکہ ہمارے تحریک میں ایک آخری آپشن کے طور پر ذکر ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، تمام زمینی حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ اس کے پاداش میں پھر جو بھی PDM کی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، حکومت کو جلسہ نظر نہیں آ رہا، جو حکومت کے حکمران جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جلسہ نہیں جلسی تھی، یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کو نظر نہیں آتا کیا ہے؟ ان کو پورے ملک کے عوام کچھ نظر نہیں آتے تو جلسہ کیسے نظر آئے گا؟ سر اب تک کے سر آپ کے جو جلسے ہوئے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت تک آپ کتنا ایکسپینڈ کر سکے ہیں یا کیا نتائج حاصل کر سکیں؟ دیکھیے، حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی غیر متعلقہ ہے تمام معاملات میں وہ عمران خان ہے اور اس کی صوبائی حکومتیں ہیں۔ تو جب عوام کے معاملات سے اور حکومت نظام سے ہی وہ تقریباً لا تعلق ہو گئے ہیں، یہ ہے PDM کا اور عوام کی تحریک کا نتیجہ کہ کس طرح حکومت اس وقت ایک غیر مؤثر چیز بن گئی ہے۔ مولانا صاحب، پہلے تو آپ کو جلسہ کامیاب ہونے پہ مبارکباد، اور دوسری بات، کل جلسے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا جہاں پر کارکنوں نے آتش بازی کی اور گتے کا جو گودام تھا وہاں پر آگ لگ گئی۔ گودام کے مالک نے مطالبہ کیا ہے کہ PDM کے جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس کا میرا ازالہ کرے، 20 سے 25 لاکھ وہ بتا رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کرے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو تھانہ ہے ملتان کا پرانا کوتوالی، وہاں پر تمام PDM کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں ایک چیز کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمیں تو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں آگ لگی، تو ظاہر ہے کہ ہمیں انتہائی افسوس ہے اس کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ لوگ یہاں پر محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، ان کا یقیناً نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اس پہ ہماری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن مزید تفصیلات چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو جس طرح صورتحال سامنے آئے گی ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ ایک ہفتے سے ملتان کا جو ماحول تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جمہوری حکومت کے دعوے داروں نے آمریت کو بھی مات دے دی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کل کے جلسے سے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اس حکومت کو آپ چلتا کریں گے کب تک؟ ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے، کارکنوں کے خلوص سے، عوام کی تائید کے ساتھ ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے، اور ہم نے ان کو مات دے دی ہے، ان کو شکست دی ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ قلعہ کوہنہ
कासिम बाग के साए में जो मैदान है लोहारी गेट घंटाघर का, वो तिल धरने की उसमें जगह नहीं थी। और जाहिर है कि अगर हम वहाँ से कंटेनर हटाते और हम वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते तो एक तो वो जो हमारा ट्रक जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था वो अंदर न जा सकता, और वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था कि हम उसको इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। हमने वही हिकमत अमली फ़ौरन बनाई कि हमने अब यहीं पर बैठकर लोगों को हमारे सामने मौजूद हैं और हमने इन्हीं लोगों से खिताब करना है, वहाँ भी होंगे तो यहाँ भी होंगे। और आपने देखा कि जो ही सियासी कारकुन मैदान में पहुँच गए, लोगों को हौसला हुआ और मुल्तान के अवाम भी घरों से निकल आए और जलसे में शरीक हो गए। लाहौर जलसे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या मकसद मजीद हासिल कर लेंगे? देखिए, एक जद्दोजहद का तसलसल है और हमारा शेड्यूल है। हम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की रुकावटें सामने आती हैं, लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बगैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं। हम आम आदमी के और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की इस वक्त तर्जुमान हैं, उनकी हम ज़बान हैं और उनको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो जद्दोजहद होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और जद्दोजहद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह उसमें हमने आगे बढ़ना है और कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, फरदौस आशिक मान साहब कहती हैं कि आप किला कोना कासिम बाग भरने के लिए आए थे, लेकिन घंटाघर भी नहीं भर सके। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? ये तो गिलानी साहब, इसका ताल्लुक कल हाई कोर्ट ने इसका ताल्लुक तो हमारी शराफत के साथ है और वो शराफत इजाज़त नहीं दे रही। मौलाना साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और पीडीएम उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, यानी जहाँ हमारा जीडीपी 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5% रखा था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया और पाकिस्तान की तारीख में इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, मयाशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को अब क्या करेंगे? गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफ़रात ज़र क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है? अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि जी रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है वो बिलक रहा है और कोई दूसरा आदमी गुजर कर उससे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामलात हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अपनी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तक़बिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीडीएम जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है
जो उसने उसकी चाबियां लेकर फतह करके उम्मत के हवाले किया, आज हम अपने पूरे तारीख को की नफी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका, वहाँ पर सफारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़लस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुँचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़लस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी ये है कि हमारे इलाके पे काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फतह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है, फ़लस्तीन अरबों की सरजमीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरजमीन है, उस पर यहूदियों ने कब्जा किया है। और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद, 1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है, और पाकिस्तान इस फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद आज़म ने 47 की करारदाद में इसको डाला है। फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर और उसकी जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क, उसका खात्मा हमारी खारजा पॉलिसी होगी। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में, कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से, आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है, इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए। तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया, आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस खत्म हो गई बात। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।